that you are part of recorded meeting, like this. Okay, then good morning everyone. So till now we have completed unit 1. What was the part of unit 1? Matrices and complex numbers. Then we have also started with unit 3. Unit 3 में क्या क्या था? Laplace or inverse. And inverse Laplace transform. Then we have covered unit 4, that is multiple integration. And then we have covered unit 5, which basically covers beta gamma function. Then we have DUIS, and then we have error function. Okay, so these 3 things we covered basically in unit 5. So we have already covered these 4 units, and now we will cover the last unit, that is called a second unit. Okay, now why I kept this second unit as last part, because ये जो सब चैप्टर है ना, यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, ये बहुत ही इजी चैप्टर से अगर आपको कुछ थोड़े बहुत फॉर्मूले पता होंगे तो आप कर सकते हो. Is the biggest unit of your syllabus which covers your ordinary differential equation. तो उसमें भी 3 चैप्टर है. First chapter deals with the equation of the first order and first degree. Second chapter will deal with the equation of the first order but more than 1 degree. Okay, and then you have the third chapter, that is linear equations or homogeneous linear equations of फर्स्ट ऑर्डर भी होंगे, सेकेंड ऑर्डर भी होंगे, सब ऑर्डर के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, दैट इज अबाउट द थर्ड. सो एवरी चैप्टर विल हैव डिफिनिट मेथड्स. मतलब हर एक आपको पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि वो कौन से डिग्री का है, कौन से ऑर्डर, देन कौन सा मेथड आप लगा सकते हो जिससे प्रॉब्लम आसानी से हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, in this only, that is first order and first degree differential equation, we have different methods, that is method of separation of variable, equation homogeneous in x and y, non-homogeneous linear equation, exact differential equation, integrating factor, linear equation, and the equation which can be converted into the linear equation. Then we have the method of substitution. So ये सब topics जो है, कितने methods है? This is 1, 2, this is 3, 4, 5, 6, 7, 8. On 8 method itself in the first order and first degree equation. Then you have the second chapter, उसमें 3 methods हैं, solvable for x, solvable for p, solvable for y, and then you have the Clairaut's form. So 4 method plus second chapter में है, and there is totally different, मतलब different types we will see in the third chapter, how to solve the linear equation, that is L of y is equal to linear equation of y is equal to some function of x. This kind of equation we will see in the third chapter. So इसको कैसे solve करेंगे? What if there is constant coefficient, non-constant coefficient, Cauchy's form, ये form, वो form. So there are many forms in this particular equation. So this is a biggest unit you can see of your syllabus. But at the same time, it is an important unit of your chapter. Why I am saying important? Because almost every models in mathematics can be formulated using differential equation.
एकदम सिंपल मेथड इसमें होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो अगर आप उसका एप्लीकेशन देखोगे, दैट इज योर न्यूटन्स लॉ. All the Newton's law are basically differential equation, and basically ये जो derivative and calculus का बहुत सारा जो part है, that is developed by the physicians. आपकी जो फिजिक्स में आपने पढ़ा है वो काफ़ी सारे फिजिसिस्ट जो है they have worked on your mathematics part to get calculus into the motion. So न्यूटन ने भी इसको डेवलप किया है. Then there are many physicists who develop this differential equations to build a mathematical model to explain the phenomena. So जो भी नेचर में फिनोमिना होता है, फॉर एग्जांपल ग्रेविटी, acceleration due to gravity, all this can be explained using this particular differential equation. Your harmonic motion, all these physical phenomena expressed with the differential equation. For example, I can say, if I have the equation that is rate of change of heating is directly proportionate to the room temperature, that is your delta H by delta T, rate of change is directly proportional to K of T. So this kind of expression is a differential equation. Or you have this equation that is for example gravity. You know that this G is the coefficient of gravitational acceleration. इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज दिस ग्रेविटी? एक्सेलरेशन जब मैं बोल रहा हूँ, आई मीन डिफरेंशिएटिंग v, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. बट व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ acceleration. हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन. बट व्हाट इज अ वेलोसिटी? Velocity is itself rate of change of displacement. So it is d by dt of ds by dt. Okay. So when you have this kind of expression, that is d square s by dt square, that is double derivative, is equal to constant, that is 9.8 meter per second square. This is form of the differential equation. Then you can form you can find the velocity at different time, that is ds by dt square. So s का अगर आपको equation दिया होगा, s is equal to 5t plus 10t square, then you can calculate the velocity at different time. What is the velocity after t is equal to 1? You will find the velocity को find करने के लिए आपको क्या निकालना है? ds by dt, right? So ds by dt at t is equal to 1 gives you the velocity at t is equal to 1 second. ds by dt at t is equal to 2 gives you the velocity of at 2 seconds, and so on. So when you have the expression of displacement in terms of time, that is 5t plus 10t square, it is depend on time, then you can actually calculate the velocity at different time. So this is the application of which differential equation. Okay. If you are given the differential equation of the form ds by dt is equal to some function, can you, for example, if you have given ds by dt is equal to say 20t, okay, if you have given this particular equation, what is value of s? You will just integrate this 20t. s का वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 20t. व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन? क्योंकि डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर अपोजिट प्रोसेस ऑफ ईच अदर. व्हाट इज इंटीग्रेशन 20t? क्या आएगा वैल्यू? 20t स्क्वायर अपॉन 2 into plus 20t square upon 2 plus c. What is the value? 10t square plus c. So always when you calculate integration, there is some constant involved into the
पिक्चर। सो ये जो कांस्टेंट है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो आपका जो भी जनरल सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का उसमें क्या इन्वॉल्व होगा, देयर विल बी इन्वॉल्विंग ऑफ द कांस्टेंट। अगर आपने इनिशियल कंडीशन से, आपका इनिशियल कंडीशन ये हो सकता है कि वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, और कोई भी इनिशियल कंडीशन से आप ये कांस्टेंट का वैल्यू पुट कर सकते हो। सो इफ यू फाइंड द कांस्टेंट वैल्यू देन योर solution is called as a particular solution. So general solution of differential equation involves the constant. Particular solution of differential equation does not involve the constant. Put a particular value of a constant, you will get the particular solution of the differential equation. Okay. So ये सब जो चीजें हैं वो 12th साइंस में जरूर आपने पढ़ी होंगी, but I don't know whether you have this in the commerce. If you are coming from the commerce background, whether you have studied this or not, I don't know. Okay, but don't worry, we will cover all this particular thing in this particular unit. Okay, so let us first go to the introduction part of differential equation. तो basically differential equation क्या होता है? So differential equation is an equation which contains one or more terms and the derivative of one variable. So differential equation में क्या क्या होना चाहिए? One is your dependent variable, other is your independent variable, and then you have the derivatives of variables. For example, if I write generally, I will get the differential equation of the form this: f of x comma y dy by dx d square y by dx square dot 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 dny by dx raised to n. For example, ये जो इक्वेशन है dy by dx is equal to 4xy, ये किस किस का फंक्शन है? It is a function of x, it is a function of y, it is a function of डेरिवेटिव ऑफ y. तो आपके इसमें क्या होना चाहिए? एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, और एक डेरिवेटिव, कोई भी एक डेरिवेटिव हुआ तो हम इसको क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज डिफरेंशियल इक्वेशन. व्हेन दिस इज यूज, दैट इज डी बाई डी एक्स, जब डी बाई डी एक्स के टर्म यूज होते हैं तो हम इसको बोलते हैं ODE. ODE का मतलब है ordinary differential equation, and if you have the terms like dabba by dabba x, then we call it as PDE, that is partial differential equation. So अगर आपका d by dx, that is डेरिवेटिव, नॉर्मल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x के टर्म है, तो आप इसको क्या बोलेंगे इक्वेशन को? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. द टर्म dabba by dabba x, then you call it as PDE. So why this term is different from this term? So generally क्या होता है? When I calculate partial differential equation. Okay, sir. Partial differential equation. So it is ordinary. O stands for ordinary differential equation and P stands for partial differential equation. So ये जो टर्मिनोलॉजी है इसमें क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और आपको यहाँ पे ये पूरे चैप्टर में ज्यादातर आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे ही पूछेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे नहीं पूछेंगे. बट ये टर्म मैं क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ? क्योंकि आपने DUIS में ये किया है, DUIS में हमने किया ना. फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस dabba x by dabba x f of x comma t. When we have such thing, that is f is a function of x as well as t, then कैसे इसका डिफरेंशिएशन किया था हमने? We have differentiating with respect to x, treating the other variable constant. जब हम ऐसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव, मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूं, dabba by dabba x e raised to ax. What is the derivative of this? यहाँ पे x के साथ
डिफरेंशिएट करना है, सो इट इज ई रेज टू ax इनटू डेरिवेटिव ऑफ ax, डेरिवेटिव ऑफ ax विथ रिस्पेक्ट टू a क्या आएगा, a आएगा. बट सेम इफ आई इंटीग्रेट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू a, e रेज टू ax क्या आएगा ये, अभी मेरा क्या है, वेरिएबल इज a एंड मैं x को कांस्टेंट ट्रीट करूंगा, सो इट इज e रेज टू ax into x. Why it is so? Because in the first case I am treating a as a constant, so a बाहर निकाला. यहाँ पे I am treating x as a constant because my differentiation with respect to a. So this is the difference between ordinary differential equation and partial differential equation. Ordinary differential equation में हम constant मान के ही चलेंगे, a is constant. And जब partial differential, when we are considering a is variable as well as x is a variable. Okay, so ये प्रोसेस आपको समझ में आनी चाहिए कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, सो ये इस फॉर्म में होता है. अभी मैं और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का. सी दिस टू एग्जांपल्स, मोर टू एग्जांपल. डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5x स्क्वायर वाई. Is it a differential equation? Yes, it is a function of x. इसमें हर कोई चीज में फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ y है, एंड डेरिवेटिव है. डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी है. सो ऑर्डर क्या होता है आपका, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका क्या होता है, व्हेन यू हैव d by dx, इट इज विच ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. व्हेन यू हैव d 2y बाय dx स्क्वायर, ये कौन सा ऑर्डर हुआ, सेकेंड ऑर्डर. इफ आई हैव d3y अपॉन dx क्यूब, देन ये कौन सा ऑर्डर हुआ, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. सो दिस इज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. मतलब आप कितनी बार डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसके हिसाब से आपका ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कंसीडर होता है. सो डी बाई डी एक्स मतलब मैं एक ही बार डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर. व्हेन आई हैव d2x बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, दिस आई एम मीनिंग दैट आई एम टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ द डेरिवेटिव, आई एम टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ द डेरिवेटिव, देयरफॉर आई एम टेकिंग डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स. अगर मैं 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो मतलब क्या है, मेरा ऑर्डर कौन सा है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, बिकॉज आई एम डिफरेंशिएटिंग 2 टाइम्स. थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब मैं क्या कर रहा हूं, आई विल टेक द डेरिवेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द डेरिवेटिव. मतलब मैंने कितनी बार डिफरेंशिएट किया, 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किया. पहली बार डिफरेंशिएट किया, देन अगेन डिफरेंशिएट किया, देन अगेन डिफरेंशिएट किया. सो ये कौन सा ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो ये आप ध्यान में रखो कि ऑर्डर क्या होता है. ऑर्डर मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक ही बार डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वी आर डिफरेंशिएटिंग 2 टाइम्स, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आई एम डिफरेंशिएटिंग 3 टाइम्स. ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज इसमें मैंने बोला है ना डी वाई बाई डी एक्स, डी 2y बाई डी एक्स स्क्वायर डॉट 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 डी एन वाई बाई डी एक्स रेज टू एन, मतलब कितने भी ऑर्डर के हम लोग डेरिवेटिव ले सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में. ओके, सो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, नाउ एक मोर कंडीशन है आपको. एक मैंने जो समझाया कि ऑर्डर क्या होता है एंड डिग्री होता है क्या. ओके, सो देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड ऑर्डर एंड डिग्री. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने में ये काम आएगा आपके. व्हाट इज द ऑर्डर, ये जो इक्वेशन है इसमें कौन सा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है. दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर है यहाँ पे, और यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है. ओके, सो हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा हुआ, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ. तो ये सेकेंड इक्वेशन का मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन लिखता हूँ. अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन का फाइंड करूंगा, इसमें ऑर्डर 1 है, सेकेंड में ऑर्डर 2 है, यहाँ पे भी क्या है, ऑर्डर क्या है, कौन सा हाईएस्ट ऑर्डर प्रेजेंट है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर है, इसलिए 2 लिखेंगे. व्हाट इज द डिग्री,
अभी आप क्या करोगे, जिसमें भी जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसका पावर कौन सा यूज हो रहा है, यहाँ पे पावर कौन सा है, 1 है, dy by dx रेज टू 1, इट इज डिग्री इज इक्वल टू 1। यहाँ पे पावर कौन सा है, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसका क्या है, डिग्री 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अभी थर्ड में क्या है, द डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का रेज टू 3 है, मतलब पावर यहाँ पे क्या है, 3 है। सो ये पावर जो है वो क्या हो जाएगा, आपका डिग्री हो जाएगा। सो व्हाट इज ऑर्डर, कौन सा टर्म प्रेजेंट है, dny बाई डी एक्स स्क्वायर, कौन सा हाईएस्ट ऑर्डर का टर्म प्रेजेंट है, वो आपका क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड जो भी आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसका पावर चेक करेंगे, उसका पावर चेक करेंगे तो मुझे जो मिलेगा आंसर वो मेरा डिग्री होगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, तो आप मुझे बताना इसमें कौन सा डिग्री है, कौन सा ऑर्डर है। टेल मी व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री। ये फोर्थ जो इक्वेशन मैंने लिखा उसका ऑर्डर एंड डिग्री क्या है, Order is 2 व्हाट and इज, degree is 1. Second order. हाँ, एंड Degree डिग्री 1. क्या हुआ, Degree 1. डिग्री 1। तो हमेशा कंफ्यूज क्या होते हैं बच्चे कि यहाँ पे ये 2 है तो ऑर्डर भी, डिग्री भी 2 लिखते हैं, बट डिग्री क्या होगा आपका, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उस इक्वेशन में है उसका डिग्री लिखना है, नॉट कौन सा हाईएस्ट डिग्री है। ओके, सो यू शुड टेक केयर ऑफ दिस व्हेन यू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, degree and order. So highest order derivative present in the given differential equation is called order of differential equation, and the degree is power of its highest order derivative. So जो फर्स्ट आपको ऑर्डर का जो टर्म मिल रहा है उसमें आप जो भी पावर लेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दिस इज द टेबल, dy by dx माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। तो ये टाइप के इक्वेशन जो है हम इस चैप्टर में देखेंगे। वी विल कवर ओनली इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर टाइप, दैट इज ऑर्डर 1। ये टाइप के जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वही हम ये चैप्टर में देखेंगे, दैट इज चैप्टर 10, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। ओके, बाकी सब हम लोग बाद में देखेंगे। ये कौन सा इक्वेशन है, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, Second तो order. ऑर्डर एंड डिग्री 1। व्हाट इज दिस, Second order. Third degree. हाँ, अभी ये जो लास्ट है वो इंटरेस्टिंग केस है, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ये कैसे करेंगे, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर में है वो हम कंसीडर नहीं कर सकते। सो व्हाट वी विल डू, वी विल कन्वर्ट दिस इनटू द like this, multiply dy by dx on both the side, then what will happen, x square into dy by dx the bracket square plus, अभी मैं dy by dx से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, cos of x बचेगी and equal to sin x into dy by dx, sin x into dy by dx. Now you can see the order and degree. Since यहाँ पे dy by dx only one time differentiation है, इसीलिए order is equal to 1. And what is the highest power here? Highest power is 2. Therefore, order is degree is 2. So order 1, degree 2. So when we come across the equation of this type, when the derivative is in denominator, we have to convert this equation where all the derivative terms will be come in the numerator. Okay, so like this we have convert the equation in such a form that all the terms of derivative is in the numerator. Okay, understand this last point? Yes sir. Okay, so let's move further.
तो मैंने जैसे बोला कि हम लोग सिर्फ फर्स्ट टाइप, ये वाला जो टाइप है, यही वाला टाइप हम लोग इसमें देखेंगे. We will do only this type. So in this chapter we see ordinary differential equation of the first order and first degree. The such equation is either written in this form dy by dx is equal to f of x comma y. ये टाइप का इक्वेशन हमने कहीं देखा है क्या? सेम टू में याद करो, ये टाइप का इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया था? कौन सा मेथड यूज किया था? दैट इज इनडायरेक्ट मेथड और अप्रोक्सीमेशन मेथड. Which method we use to solve this kind of equation? एक तो आपने यूज किया था टेलर सीरीज मेथड. टेलर सीरीज यूज किया था, और यू हैव यूज द ऑयलर्स मेथड. ऑयलर्स मेथड भी यूज किया था अप्रोक्सीमेशन का. मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड यूज किया था. रंगे खुट्टा मेथड यूज किया था. All these methods are, ये जो मेथड हमने यूज किए थे वो कौन से मेथड्स थे? अप्रोक्सीमेशन मेथड. इज माय वॉइस ब्रेकिंग? हेलो, यस सर. एक मिनट. आई विल जस्ट नाउ. ओके, ठीक है. सो दिस इज रंगी कुत्ता मेथड. सो ये मेथड, जो तीनों मेथड मैंने बताए, व्हाट इज दिस मेथड? These are the approximation method. Why I am calling this as approximation method? Why it is approximate? Because this gives me approximate answer, not the exact answer. Now in this chapter we will see exact answer method. और exact answer आपको कैसे मिलेगा? इंटीग्रेशन से मिलेगा. वो कैसे करना है? That we will see by using various things. Okay. For example, we have this mxy dx plus ny dx. इसमें से हम लोग ये निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? सेकेंड का मैं क्या कर सकता हूँ? I will have n. I will not write x comma y. You understand that whenever I write n, it is the function of x and y. N dy is equal to minus m into dx, right? N dy is equal to minus m dx. So what will happen? I will have dy by dx is equal to minus m by n. So m is a function of x comma y. N is also function of x comma y. So this overall m by n is also a function of x comma y. So you can convert this particular equation, the second type equation, into the first type and vice versa. Okay. अगर मुझे ऐसे इक्वेशन का फॉर्म दिया है डी आई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई, I can convert into this form, that is m dy xy dx plus n dx n xy dy is equal to 0. And the other hand, if I have given the equation in this form, I can convert into equation in the first form. So दोनों क्या है? इक्विवेलेंट है. तो आपको हमेशा क्या देखना है? अभी हम लोग किस फॉर्म में है? We are converting all the equation. All the equation in this chapter will be of first order and first degree. First order and first degree. ये चैप्टर में यही इक्वेशन को डील करेंगे. ओके, let us see now. So there are 8 methods as I have started with. So first method है जिसको बोलेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ द वेरिएबल. मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ द वेरिएबल क्या है कि अगर आप इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हो, दैट इज, व्हाट इज दिस फॉर्म? इंस्टेड ऑफ m, मतलब ये फॉर्म कौन सा है? सेकेंड वाला फॉर्म है. m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0. दैट इज m, ये जो फंक्शन है वो सिर्फ x का फंक्शन है एंड n जो है सिर्फ y का फंक्शन है. देन इसको क्या बोलेंगे? मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल. दैट मीन्स यू कैन सेपरेट द वेरिएबल सच अ वे दैट dx के साथ सिर्फ x के टर्म होंगे
एंड dy के साथ सिर्फ y के टर्म होंगे. अंडरस्टैंड दिस. dx के साथ सिर्फ x के टर्म चाहिए, dy के साथ सिर्फ y के टर्म चाहिए. देन what you can do, you can integrate this like this, f of x f1 of x dx plus integration of fy dy इक्वल टू 0. सो इक्वल टू 0 है. यहाँ पे कोई भी एक इक्वेशन में आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा. So something, when you solve this, you will get something, a function. When you solve this, you will get another function. This function is in terms of x, second function is in terms of y, plus c equal to 0 is your general solution. When you solve this integration, you will get the general solution of the differential equation. Okay? So ये सबसे simplest method है. सबसे simplest method is मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल. अगर आप मेथड ऑफ आपको इक्वेशन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में मिला तो उसके जैसा और कोई ये नहीं है, मतलब ट्रीट नहीं आपके लिए होगा. सो इससे एग्जांपल से सॉल्व करेंगे. ओके, द फर्स्ट एग्जांपल, सॉल्व dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स माइनस 2y. अभी यहाँ पे देखो ये एफ ऑफ एक्स वाई क्या है आपका, ये इक्वेशन कौन से टाइप का है. पहले it is of the form dy by dx is equal to f of x comma y. It is of the form dy by dx is equal to f of x comma y. अब इसको सॉल्व करो, क्या होगा. dy by dx क्या है आपका, e raised to x minus 2y. What is this? It is e raised to x into e raised to minus 2y. Why I can write like this? Base is same, then powers gets added. अगर इसको मुझे डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना है, माइनस 2 पावर है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, e raised to x e raised to 2y. Okay, we write like this, e raised to x upon e raised to 2y. What is this? This is dy by dx. Separate out the two variables. I will put y over here. E raised to 2y dy is equal to e raised to x dx. What is the next step? What is the next step? Integrating both the sides. That is e raised to 2y dy is equal to integration e raised to x dx. What is the value of e raised to 2y? इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आएगा, e raised to 2y upon 2 आएगा. और यहाँ पे e raised to x का इंटीग्रेशन होता है e raised to x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सो ये आपका क्या है, जनरल सॉल्यूशन. दिस कंप्लीट्स योर जनरल सॉल्यूशन. यू मे राइट लाइक दिस आल्सो, लाइक फॉर एग्जांपल e raised to 2y minus 2 times e raised to x plus c इक्वल टू 0. अगर आपको बुक में ये सॉल्यूशन दिया होगा तो कैसे करोगे, वाई इट इज लाइक दिस. अगेन दिस इज मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2. e raised to 2y is equal to 2e raised to x plus 2c. अगर c कांस्टेंट है तो 2c क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा. सो यू कैन टेक द कांस्टेंट ओवर दिस साइड एंड यू कैन मल्टीप्लाई, माइनस करके लिखो, कांस्टेंट प्लस करके लिखो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे. ठीक है. यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज, यहाँ पे माइनस 2c आएगा अगर ओरिजिनली आप करोगे तो, but minus 2c is also a constant, therefore you can replace it by another constant, that is plus c. So c is just like a placeholder. Okay, c is just like a placeholder. constant आपको लिखना है. ठीक है, अगर आपने वहीं पे छोड़ दिया तो भी चलेगा. कंसिडर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. अभी क्या है, is it a variable separable from directly? Sec square x tan y plus sec square y tan x dy is equal to 0. Is it variable separable form?
Yes, sir. नहीं, डायरेक्टली तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखना है कि x के साथ कौन से टर्म्स हैं, x के साथ कौन से टर्म है यहाँ पे, व्हाट आर द टर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे y का टर्म है, सिमिलरली y के साथ आपके क्या है, x का टर्म है। तो इट इज नॉट डायरेक्टली इन द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। लेट अस सॉल्व दिस कन्वर्जन। इसका कन्वर्जन कैसे करेंगे हम लोग? टेक द डिफरेंशियल इक्वेशन। So let me write like this. फर्स्ट क्या होगा, sec square x into tan y dx is equal to minus of sec square y tan x dy. Is it okay? Can I write like this? ये जो टर्म है सेकेंड वाला टर्म मैंने राइट हैंड साइड पे ले लिया। अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, x के टर्म एक साइड लेंगे, y के टर्म एक साइड लेंगे। यहाँ पे y का टर्म क्या है, tan y है, यहाँ पे x का टर्म क्या है, tan x है। सो tan x को इधर शिफ्ट करो, tan y को उधर शिफ्ट करो, तो क्या होगा, देयरफॉर sec square x अपॉन tan x is equal to minus of sec square y अपॉन tan y इंटू dy, और यहाँ पे क्या है, दिस इज dx, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड। नेक्स्ट स्टेप विल बी टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड। टेल मी व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन, sec square x अपॉन tan x। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, सर u by v से करेंगे ना। ऐसा कोई रूल नहीं, u बाय v इंटीग्रेशन में कोई रूल नहीं है ऐसा। थिंक मोर अपॉन इट। एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बताता हूं, क्या वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू log of f of x. Understand this formula, integration of f dash x upon fx dx is equal to log of f of x। मतलब अगर आपका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है और ओरिजिनल फंक्शन डिनोमिनेटर में है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, log of f of x। Is it in this form? What is the derivative of tan x? tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस चिक टेक योर टाइम। आपको फॉर्मूला अगर गूगल करना है तो गूगल करो। सर इट्स माइनस कॉट एक्स ना। नहीं, चेक करो, गूगल पे चेक करो अगर नहीं पता है तो। एंड टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ tan x। अगर गूगल नहीं करना है तो u बाय v रूल लगाओ, tan x का वैल्यू होता है साइन अपॉन कॉस। इसको u बाय cos x, इसको u बाय v रूल से सॉल्व करो डेरिवेटिव, और मुझे आंसर बताओ क्या आएगा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x। किसी ने तो बोला sec square x होता है, हाँ चेक करो जस्ट sec square x है या माइनस sec square x है। एक्चुअली इट इज sec square x, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, u बाई बी रूल से साइन एक्स सॉरी cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, वो क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos होगा, cos square x होगा, माइनस cos x साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस होगा। सो ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में, cos square x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन डिनोमिनेटर में cos square x आएगा, साइन स्क्वायर प्लस cos square विल गिव यू 1, सो 1 अपॉन cos square विच इज इक्वल टू sec square। सो इट इज ऑफ द फॉर्म f dash x अपॉन एफ एक्स। सो इसका वैल्यू क्या आएगा, द वैल्यू इज log of tan x, the value is log of tan x is equal to minus times log of tan y, since यहाँ पे भी क्या है tan y एंड ऊपर है sec square y, so it is log of tan y प्लस, अभी मैं थोड़ा स्मार्टनेस दिखाऊंगा यहाँ पे,
स्मार्टनेस ये है कि अगर आपके इंटीग्रेशन में अगर लॉग का टर्म है तो यू टेक द कांस्टेंट एज log c. द कांस्टेंट यू कैन टेक एज log c. सो जब भी आपके इंटीग्रेशन सॉल्विंग पे नॉर्मल टर्म्स आ रहे हैं, जैसे कि इसमें लॉग के टर्म्स इन्वॉल्व नहीं है, तो मैं c एज इट इज ले रहा हूँ. बट अगर आपके इक्वेशन में लॉग के टर्म इन्वॉल्व हो रहे हैं तो कांस्टेंट क्या लोगे आप? log c. सिंस c इज अ कांस्टेंट, log c इज आल्सो अ कांस्टेंट. अगर मेरा 10 है तो log 10 का वैल्यू क्या है? 2, विच इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट. सॉरी, log 10 का वैल्यू 1 होगा विथ रिस्पेक्ट टू बेस 10. तो कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा? log c is also constant. So whenever you have the equation in terms of log, do this kind of manipulation in the constant. If you think that if you take instead of c 2c will make your integration more like a simple constant. अगर आपका 3c से इक्वेशन सिंपल होता है, जस्ट चेक करो कि आप जो भी टर्म लोगे वो कांस्टेंट टर्म है. अगर c कांस्टेंट है तो 2c भी कांस्टेंट है, 5c भी कांस्टेंट है, 10c कांस्टेंट है, 100c भी कांस्टेंट है. तो जो सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट का आपको इक्वेशन से मतलब ये बनाता है, सिंपल बनाता है, वो आपको सब्स्टिट्यूट करना है. तो यहाँ पे मैं अगर log c लूंगा तो मेरा इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा. क्यों सिंप्लीफाई हो जाएगा? व्हाट इज log c माइनस log 10y? इट इज log ऑफ c बाय 10y. The log c minus log 10y, log a minus log b is log of a by b. That is here, and here क्या होगा? log of tan x. राइट, दोनों तरफ से log निकालो तो क्या मिलेगा आपको? tan x is equal to c upon tan y. That is, if I multiply over here, फाइनल आंसर में क्या लिखूंगा इसका सॉल्यूशन? tan x into tan y equal to c. This is your solution of the differential equation sec square x tan y dx plus sec square y tan y dy is equal to 0. अब ये solution है, कैसे पता चला मुझे? Why it is a solution of this? I can differentiate this. If I differentiate this, what will happen? tan x इंटू डेरिवेटिव, यूवी रूल अप्लाई करो और डिफरेंशिएट करो, जो मैं अभी यहाँ पे बुक में आपको समझाता हूँ. व्हाई इट इज अ सॉल्यूशन. ये समझा के यहाँ तक? एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस? हाँ, तो मैं डिलीट कर देता हूँ. मुझे सॉल्यूशन क्या मिला था? व्हाट वाज माय सॉल्यूशन? tan x into tan y is equal to constant is my solution, right? If I differentiating both the side, what will happen? d by dx of tan x into tan y is equal to, what is the derivative of constant? Derivative of constant is 0. अभी यहाँ पे यूवी रूल अप्लाई करो. यूवी रूल अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको? What is the derivative of u into v? derivative of u into v plus u derivative of v equal to 0. So यहाँ पे क्या मिलेगा? tan x, that is the first thing, tan x मिलेगा into what is the derivative of tan y? सेकेंड का डेरिवेटिव ले रहा हूँ मैं. क्या होगा? tan y का डेरिवेटिव क्या है? sec square y into dy by dx. जब भी आप इसको विथ रिस्पेक्ट टू y है ना, आप डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ये ले रहे हो और ये विथ रिस्पेक्ट टू y है, तो आपको क्या टर्म ऐड करना पड़ेगा? dy by dx. इसको क्या बोलते हैं? रूल. दिस रूल इज कॉल्ड एज चेन रूल. दिस रूल इज कॉल्ड एज चेन रूल. इफ इंस्टेड ऑफ x, tan x का डेरिवेटिव आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, बट tan y का जब निकालोगे तो आपको क्या टर्म ऐड करना पड़ेगा? dy by dx. दिस इज कॉल्ड एज चेन रूल. प्लस अभी क्या करोगे? tan y को कांस्टेंट रखोगे एंड यू विल टेक द डेरिवेटिव ऑफ sec tan x विच इज sec square x विच इज इक्वल टू 0. नाउ इसको सिंप्लीफाई करो. सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई विद dx. मल्टीप्लाई विद dx करोगे तो क्या आएगा? फर्स्ट टर्म tan x इंटू sec square y dy प्लस
if I multiply with dx, tan y into sec square x dx is equal to 0 into dx, dx 0, sorry. तो ये आपको ये इक्वेशन मिला वापस. Are you getting this equation? So whatever is the solution, if you differentiate, you should get back the original differential equation. That is the meaning of this. Solution का meaning यही है कि अगर मुझे जो solution मिला उसको मैं वापस differentiate करूंगा तो मुझे original equation, differential equation मिलना चाहिए. Understand this concept? So ये क्या है? ये method of checking है. आपका solution correct है कि नहीं है ये देखने के लिए आप ये यूज करोगे. फर्स्ट में आप होमवर्क देता हूँ, आप फर्स्ट को दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो और मुझे बताओ कि वो ओरिजिनल इक्वेशन आपको वापस मिलता है कि नहीं. ओके ओके सर. नाउ द वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट. हाँ असाइनमेंट दिया है, उसके बाद करेंगे लेक्चर खत्म होने के बाद. अभी आप मुझे बताओगे इसको कैसे सॉल्व करोगे. How I will solve this question? What is the first step? सर वो उसको वहां पे ले लेंगे, वो इक्वल टू वो साइड माइनस में. Okay, so I will write 3 raised to x tan y dx is equal to क्या होगा यहाँ पे? माइनस ऑफ ब्रैकेट में करेक्ट. अभी क्या करना है मुझे? सेपरेट आउट करना है. इसको यहाँ पे लेना है, इसको यहाँ पे लेना है. तो क्या होगा? 3 e raised to x अपॉन 1 माइनस e raised to x. 1 minus e raised to x, okay, इक्वल टू ये dx. सर माइनस की साइन नहीं आएगी क्या? कौन सा? ये माइनस का साइन में ऊपर डाल देता हूँ. ठीक है, अपॉन में. हाँ ओके, वो चलेगा. माइनस की साइन ऊपर डालो या नीचे डालो चलता है. इनटू dy. अभी क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप? इंटीग्रेशन. फिर उसका इंटीग्रेशन माइनस 3 times e raised to x upon, sorry, I will take 3 common. I am adjusting like this. माइनस यहाँ पे e raised to x लेता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ 1 minus e raised to x. This is just a adjustment. dx equal to integration sec square y upon tan y dy. Okay, what is this integration? डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या है? 1 minus e raised to x. What is the derivative? minus e raised to x. Minus e raised to x. So it is of the form f dash x upon f of x. यहाँ पे भी कौन सा फॉर्म है? f dash x upon f of x. What is the answer? 3 times 1 minus log of 1 minus e raised to x. log of 1 minus e raised to x इक्वल टू माइनस ऑफ नहीं इसमें नहीं, नहीं सॉरी log tan y log of tan y प्लस, अगर log के plus log टर्म of c. तो log c लेना है. So what is log of tan y into log of c? It is the log of c times tan y. अगर एडिशन है log में तो क्या होता है? It is the multiplication. और यहाँ पे 3 बाहर है, so what I can write, this is log of 1 minus e raised to x bracket cube.
दिस इज द log of 1 minus e raised to x bracket cube. क्योंकि what is the logarithm rule? Says log of x raised to n is same as n times log of x. This is same of log of n times log of x. तो ये रूल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया रिवर्स वे में. 3 into log of 1 minus e raised to x is same as log of 1 minus e raised to x raised to 3. अभी दोनों तरफ से log हटा सकता हूँ. सर यहाँ पे प्लस आएगा ना? कौन सा प्लस? 3 log 1 plus e raised to x होगा ना? क्यों? यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? 1 minus 3x. What is the formula says? Integration of f dash x upon fx dx is equal to log of f of x. What is f of x is over here? f of x क्या है यहाँ पे? 1 minus e raised to x. हाँ, तो वही लिया यहाँ पे 1 minus e raised to minus x. Okay, so it is 1 minus e raised to x raised to 3 equal to c times tan of y. This is your general solution. This is your general solution to the problem. General solution means involving constant होना चाहिए. That's it. Okay. ये प्रॉब्लम कितना होगा पता नहीं. Let us see how to solve it. You are going to tell me. सबसे पहले अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करना है तो वेरिएबल सेपरेटेबल मेथड यूज होता है क्या नहीं देखना पड़ेगा. dy इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स वाई स्क्वायर, सॉरी चलो ऊपर वाले सम का थोड़ा दिखाने लाइन 2 लाइन जाती क्या? ऊपर वाले सम है ना, उसका लास्ट का 2 लाइन लिखने का बाकी. कहाँ पे बाकी है? ये हो गया आपका सॉल्यूशन. मेरे को लिखने का था इसमें. अभी मैं ये कर रहा हूँ. क्या डाउट है आशीष? सबसे वो सॉल्यूशन लिखना था उसका. हाँ, दिस इज द सॉल्यूशन ना. अभी सॉल्यूशन में आपको, हाँ मतलब आप उसको रिवर्स वेरीफाई करना चाहते हो क्या? सर मैं नोट कर रहा था ना, तो नोट नहीं कर पाया था. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. अभी यहाँ पे करो. यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? इसमें x के भी टर्म है, y के भी टर्म है, तो सेपरेट आउट करना है मुझे. तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक एक्स स्क्वायर कॉमन. इट इज 1 माइनस वाई इंटू डी वाई. और यहाँ पे क्या कॉमन लूंगा मैं? वाई स्क्वायर कॉमन लूंगा तो मैं क्या मिलेगा? आई विल गेट 1 प्लस एक्स डी एक्स. अभी सेपरेट आउट करो दोनों टर्म्स को. तो ये क्या होगा? 1 माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू, ये वाई स्क्वायर उस साइड लिया, इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑल टर्म्स ऑफ y, राइट हैंड साइड पे ऑल टर्म्स ऑफ x. अभी इसको इंटीग्रेट करेंगे. व्हाट इज इंटीग्रेशन? 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अपॉन वाई स्क्वायर इज 1 बाय वाई, ये आपका ब्रैकेट हो गया, इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ द इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस इंटू डी एक्स प्लस सी. ठीक है, अब ये बाद में लॉग से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, देखना पड़ेगा. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय वाई स्क्वायर? लेट अस राइट सिंपलीफाई. नहीं, it is y raised to minus 2 minus, what is this integration? 1 by y का log y लिख सकते हो आप.
1/y का आप इंटीग्रेशन ले लो y। सिमिलरली माइनस फर्स्ट इंटीग्रेशन आई विल राइट इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू -2। ठीक है, यहाँ पे मैं dy लिखना भूल गया, बट यहाँ पे लिखता हूँ मैं अच्छे से, dx प्लस व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, log ऑफ x, ठीक है, प्लस c। अभी व्हाट इज द y रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, y रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सिर्फ y रेज टू -1 का आप नहीं कर सकते ये रूल से, बाकी कोई भी का आप इससे कर सकते हो। y रेज टू -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में 0 देता है। अगर y रेज टू -1 लिया तो डिनोमिनेटर मेरा 0 देता है, इसलिए मैं नहीं कर सकता। माइनस log ऑफ y इक्वल टू, अगेन यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस फर्स्ट टर्म क्या आएगा, x raised to -2 plus 1 upon -2 plus 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस व्हाट इज log ऑफ x एज इट इज, और प्लस c एज इट इज। ओके, लेट अस सिंप्लीफाई। व्हाट इज y रेज टू -2 प्लस 1, दैट इज y रेज टू -1 अपॉन -1 माइनस log ऑफ y इक्वल टू, माइनस लिखता हूँ मैं यहाँ पे, x रेज टू -1 अपॉन -1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस साइन अंदर अप्लाई किया तो माइनस log ऑफ x प्लस c। सो अभी मैं log के टर्म एक साइड शिफ्ट करता हूँ, तो इट इज़ log ऑफ x माइनस log ऑफ x, यहाँ पे जाके प्लस log ऑफ x होगा, log ऑफ y माइनस log ऑफ y एज इट इज। x रेज टू -1 आई कैन राइट 1/x, x रेज टू -1 आई 1/x एंड प्लस c। यहाँ पे y रेज टू -1 माइनस में है, तो इट इज़ माइनस ऑफ ये, सो इट इज़ माइनस की जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आके प्लस लिख सकता हूँ, दैट इज प्लस 1/y एंड क्या बचा, c बचा। सो इट इज log ऑफ x अपॉन y इक्वल टू whatever it is, that is 1/x plus 1/y plus c. This is your general solution. This is your general solution. So you have solved this problem. General solution में there should be involvement of constant and no involvement of derivative. Solution का मतलब वही है कि it should involve the constant and not involve the derivative. Okay. So we will stop here for today. Thank you, sir. Bye everyone. thank you Bye, sir. sir. बाय सर। Thank you so much. Bye.